السلام علیکم ناظرین، 4 ٹی وی کشمیر میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر عبدالمغنی صدیقی۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر۔ جموں کشمیر کے لیے 1,63,000 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کے لیے تجاویز سامنے آئیں۔ سال 2024 میں 1,984 یونٹس قائم کی گئیں۔ سروے رپورٹ میں حکومت نے پیش کی تفصیلات۔ بجٹ سماجی انصاف کی فراہمی کا ایک تسلسل ہے، این سی ایم ایل اے حسنین مسعودی کا بیان۔ سانبا کے رام گڑھ میں کانگریس کا جلسہ عام، ہماری ریاست ہمارا حق کے تحت چلائی مہم۔ راج باغ سری نگر میں آل روڈ ٹرانسپورٹ ورکرز یونین کا منعقد ہوا ایک روزہ کنونشن۔ یوسف تارگامی نے کی شرکت۔ ورکرز کے مطالبات کی یکسوئی کا حکومت سے کیا مطالبہ۔ کٹھوعہ میں 3 افراد کی مشتبہ ہلاکت کے بعد پولیس اور سیکورٹی ایجنسیاں چوکس، ایل جی نے تحقیقات کے لیے جاری کی ہدایات۔ کٹھوعہ کی صورتحال پر محبوبہ مفتی نے جتائی تشویش، جامع تحقیقات کا حکومت سے کیا مطالبہ۔ اور سپور میں منشیات کی تسکری میں ملوث افراد کی جائیداد کر دی گئی غرق، پولیس نے کی کارروائی۔ سرخیاں آپ نے دیکھی، اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ سال 2024 میں جموں کشمیر میں 1,63,000 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کے لیے پیشکش کی گئی۔ اقتصادی سروے رپورٹ 2024-25 کے مطابق جموں کشمیر کو دسمبر 2024 تک 1,63,000 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کی پیشکش کی گئی ہے اور تجاویز سامنے آئی ہیں۔ سرمایہ کاری کی تجاویز کے تحت جس سے ملازمت کے 5.90 لاکھ مواقع پیدا ہوئے۔ رپورٹ میں خطے میں صنعتی ترقی، دستکاری کی برآمدات اور اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم میں اضافے پر روشنی ڈالی گئی۔ وزیر اعلیٰ کی طرف سے قانون ساز اسمبلی میں پیش کی گئی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 9,606 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری اور 63,710 لوگوں کو روزگار فراہم کرنے والے 1,984 یونٹ قائم کیے گئے۔ تمام یونٹس سال 2019 تا دسمبر 2024 میں ترتیب دیے گئے۔ رپورٹ کے مطابق 334 یونٹ میں 8,443 افراد کے لیے روزگار کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا۔ ایم ایل اے پامپور و این سی لیڈر حسنین مسعودی نے کہا ہے کہ اسمبلی میں پیش کردہ بجٹ سماجی انصاف کی فراہمی کا ایک تسلسل ہے۔ حسنین مسعودی نے سماجی انصاف کی فراہمی کے لیے 1952 میں جس منصوبہ بندی کا آغاز کیا تھا، جموں کشمیر کا پیش کردہ بجٹ اسی کا ایک تسلسل ہے۔ حسنین مسعودی نے کہا ہے کہ جموں کشمیر حکومت کی توجہ یہی ہے کہ جو انتہائی کمزور اور پچھڑے طبقات ہیں ان کے مسائل کو حل کیا جائے، ان کی فلاح و بہبود کی جائے۔ دیکھیں گے یہ بجٹ جو ہمارا سوشل جسٹس کا پروگرام ہے جس کی شروعات 1952 سے ہوئی، اسی کے تسلسل میں ہے۔ آج بھی ہمارا فوکس ہے جو آخری پائیدان پر ہے، وہ سیگمنٹ سوسائٹی کے جو آخری پائیدان پر ہے۔ دیکھیں جیسے جو راحت دی گئی بجلی فیس کے سلسلے میں یا ابھی جو راشن کے حوالے سے، تو وہ اس سیگمنٹ کو دی گئی۔ پہلے جو سیگمنٹ ہمارا اے وائی ہے یا آخری پائیدان پر ہے، ایٹ دا اینڈ آف دا کیو ہے۔ تو یہ ہمارا پروگرام پہلے سے رہا ہے کہ ان پر فوکس کیا جائے۔ اب یہ ہے کہ کچھ جو سیگمنٹس ہونے چاہیے تھے یا جو بھی تقاضا کرتے ہیں کسی راحت کا، مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ پیش رفت ہوگی۔ دوسری بات ہے کہ ڈیولپمنٹ کی بات ہے، ایک نئے انیشیٹوز ہیں، نیشنل لا سکول یونیورسٹی کی بات ہے، سکل یونیورسٹی کی بات ہے، ہیلتھ کیئر کو مستحکم کرنے کی بات ہے،
اور ہمارا جو ڈائگنوسٹک سسٹم ہے وہ اکراس جموں اینڈ کشمیر وہ مستحکم کرنے کی بات ہے تاکہ لوگوں کو رسائی ہو ایک ہیلتھ کا ایسے جو ایک ایفیشینٹ ہیلتھ کیئر سسٹم ہو. تو وہ نئے انیشیٹوز ہیں. تو اسی طرح ٹورزم کے حوالے سے جو انیشیٹوز ہیں تو دیکھیے ہر سمت میں ہر پہلو کو نظر میں رکھا گیا ہے. اور سب سے بڑی چیزیں جو ہے جو بات بریکنگ ہے وہ جو جیسے میں نے ذکر کیا نیشنل لا سکول یونیورسٹی ہے تو وہ ہوگی تو اس سے کیا ہوگا. اور سکل یونیورسٹی ہے تو اس سے کیا جڑ جائے گا ہمارا جو ایجوکیشن ہے وہ جڑ جائے گی. جو امپلائمنٹ ہے جو امپلائیبلٹی ہو جائے گی جو ہم ڈگریز ارن کرتے ہیں ان کی. सांबा के रामगढ़ में आज कांग्रेस पार्टी ने हमारी रियासत हमारा हक मुहिम के तहत जलसे का इनेकाद अमल में लाया. जलसे की सरबराही सदर प्रदेश कांग्रेस जम्मू कश्मीर तारिक अमीन कर्रा ने अंजाम दी. साबिक रियासती वजीर व जम्मू कश्मीर कांग्रेस कमेटी के सीनियर लीडर रमन भल्ला के बशमूल दीगर कांग्रेसी लीडरान ने इस जलसे में शिरकत की. सैकड़ों की तादाद में हल्के असम्बली सांबा के पार्टी अरकान भी जलसे में मौजूद रहे. इस मौके पर सदर प्रदेश कांग्रेस जम्मू कश्मीर तारिक अमीन कर्रा ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि शुरू की जाने वाली मुहिम को न सिर्फ पार्टी वर्कर्स बल्कि आवामी सतह पर भरपूर तायद मिल रही है. तारिक अमीन कर्रा ने मरकजी हुकूमत पर जोर दिया कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों से किए गए वादे की जल्द तकमील करे. इन्होंने तमाम सियासी पार्टियों को बगैर किसी इम्तियाज़ के एक दूसरे के साथ मुत्तहदा तौर पर जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली के लिए मरकज़ पर दबाव डालने पर जोर दिया है. हमारी रियासत हमारा हक का जो प्रोग्राम है जो मुहिम है ये पूरे जम्मू सूबा में हम लोगों ने की, हर डिस्ट्रिक्ट में की. और आज यहाँ सांबा का ये लास्ट का प्रोग्राम था जहाँ तक सूबा जम्मू का ताल्लुक है. और हमें खुशी है कि जो हम लोगों ने मुहिम चलाई है इसमें विद एवरी पासिंग डे रिस्पांस जो है वो बहुत बढ़ता जा रहा है, न कि सिर्फ हमारे वर्कर्स में बल्कि आम लोगों में भी. और जहाँ तक हमारी रियासत हमारा हक का ताल्लुक है, रियासत किन हालात में हमसे छीनी गई उस पर बहुत बात हो चुकी है. लेकिन जहाँ तक रेस्टोरेशन का ताल्लुक है, रेस्टोरेशन ये किसी एक पार्टी का मामला नहीं है, ना ही ये कांग्रेस जनू का मामला है. ये जम्मू कश्मीर के तकरीबन 1 करोड़ लोगों का मामला है. और इसमें किसी की कोई ओनरशिप नहीं है, ये तो पूरे लोगों का मामला है. तो इसमें हमने कल भी असेंबली में जिस वक्त बजट पे तकरीर की तो उसमें हमने ओपन ऑफर सारी पॉलिटिकल पार्टीज को दी कि लेट अस यूनाइट टुगेदर. ये हमारा कॉमन काज है. हमें आगे आने वाली नस्लों के वास्ते भी सोचना है कि अगर आज हम चूक गए, अगर आज हमारी रियासत का दर्जा वापस नहीं मिला तो आने वाली नस्लें जो हैं वो हमसे ज्यादा नुकसान उठाएंगी. तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने उस पर हमें जो है रिस्पॉन्ड भी किया, लेकिन सिर्फ बीजेपी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा. हम नहीं समझते, हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि वो रियासत का दर्जा वापस लाने के हक में हैं या नहीं है. क्योंकि एक साइड से उनके प्राइम मिनिस्टर साहब, उनके होम मिनिस्टर साहब बार बार ये दोहराते हैं, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर भी. कठुआ में गुज़िश्ता रोज़ लापता 3 अफराद की लाशें पाई गईं, जिसके बाद इलाके में गम व गुस्से की लहर देखी जा रही है. कठुआ के बिलवाड़ इलाके में हल्की कशीदगी की इत्तलात भी मिली हैं. ख्याल रहे 6 मार्च से लापता 3 अफराद की गुज़िश्ता रोज़ मुश्तबा हालत में लाशें पाई गईं, जिसके बाद मुकामी लोगों में सख्त बरहमी पाई जा रही है. वाज़ेह रहे शादी की तकरीब में शिरकत के बाद अपने घर वापस हो रहे थे ये लोग, लेकिन वो घर वापस नहीं हुए बल्कि लापता हो गए. उनकी गुमशुदगी की पुलिस स्टेशन में इत्तला की गई और उन्हें तलाश किया जा रहा था. ताहम गुज़िश्ता रोज़ बेलवाड़ इलाके में एक नाले के करीब तीनों की मुश्तबा हालत में लाशें पाई गईं. महलूकीन की शनाख्त 15 साला वरुण सिंह, 32 साला योगेश सिंह और 40 साला दर्शन सिंह से की गई है. तीनों महलूकीन का ताल्लुक़ कठुआ के मरहूम देहात से बताया गया है. मुश्तबा हलाकतों से मुतालिक पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. तीनों की मुश्तबा हलाकतों पर अस्करत पसंदों के जाविये से भी तहकीक़ात की जा रही हैं. तफसीलात के मुताबिक बास नामालूम अनासिर की जानिब से कठुआ में फ़िरक़ावाराना भाईचारे को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है. ताहम पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों को चौकस कर दिया गया है ताकि सूरत हाल को काबू में रखा जा सके.
ख्याल रहे कठुआ में महज चंद दिनों के दौरान गुमशुदगी के बाद मुश्तबा हालत में होने वाली हलाकतों का ये दूसरा वाक़या है। एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने कठुआ में 3 बेकसूर अफराद की मुश्तबा हलाकतों की सख्त मजम्मत की। एलजी जम्मू कश्मीर ने कठुआ के बेलवाड़ में पेश आए मुश्तबा हलाकतों के मामले की जामे और शफाफ तहक़ीक़ात के अहकाम सादिर किए हैं। एलजी जम्मू कश्मीर ने हिदायत जारी की है कि मामले की तेज़ तर तहक़ीक़ात की जाए और ज़िम्मेदार कातिलों को पकड़ा जाए। एलजी ने कठुआ के बेलवाड़ में होने वाली 3 मुश्तबा हलाकतों पर अपने गम व अफसोस का इजहार करते हुए पसमानदगान से अपनी पूरी हमदर्दी का इजहार किया है। पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती ने कठुआ में 3 अफराद की मुश्तबा हलाकत पर अपनी गहरी तशवीश जाहिर करते हुए शफाफ तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि कठुआ की सूरत हाल तशवीशनाक है। पीडीपी सरबराह साबिक़ वज़ीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती ने होने वाली मुश्तबा हलाकतों पर अपने गम व अफसोस का इजहार किया। इन्होंने कहा है कि इस बात को खारिज अज़ इम्कान नहीं किया जा सकता कि बाज़ अनासिर कठुआ में हालात को फ़िरक़ावाराना कशीदगी से दो चार करना चाहते हैं। इन्होंने कहा है कि सरहदी ज़िले कठुआ एक हसास नौइयत का ज़िला है। कठुआ समेत जम्मू डिवीज़न और कश्मीर के हसास समझे जाने वाले इलाकों में सिक्योरिटी एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया। कई एक हसास इलाकों में खुसूसी नाके लगाए गए हैं। गाड़ियों और राहगीरों की जामे तलाशियां ली जा रही हैं। राजौरी और पुंछ से मुत्तसिल इलाकों में फोर्सेस की जानिब से सर्च ऑपरेशन भी जारी है। CPIM जम्मू कश्मीर यूनिट के जनरल सेक्रेटरी और MLA कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि ट्रांसपोर्ट वर्कर्स की देरीना मुतालबात की यकसोई की जाए। यूसुफ तारेगामी ने आज राजबाग श्रीनगर में ऑल रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन जम्मू कश्मीर के एक रोज़ा कन्वेंशन में शिरकत की और कन्वेंशन को मुखातिब भी किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए तारेगामी ने ट्रांसपोर्टर्स के मुतालबात की यकसोई पर जोर दिया है। सामने रखा कि रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन ऑल इंडिया की तरफ से ये आए हैं यहाँ, और हम इनके शुक्रगुजार हैं। और साथ ही साथ मुद्दा जो हमारे पास मुद्दे हैं ट्रांसपोर्ट के मुतालिक, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स के बारे में, वो बड़े मुद्दे यही है कि सोशल सिक्योरिटी नहीं है हमारे ड्राइवर को। जैसा कि आप सबको मालूम है कि कश्मीर मुल्क में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशनों में एक है, और आज भी नुमाया मुकाम है पूरी दुनिया में जहाँ तक कश्मीर के टूरिज़म का ताल्लुक़ है, यहाँ की डेस्टिनेशंस का ताल्लुक़ है। लाजमी तौर पर उनको उनके देखभाल करने के लिए उनको मुख्तलिफ डेस्टिनेशंस होटल्स तक ले जाने में जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स हैं, ड्राइवर्स हैं, उनका एक कलीदी रोल है, इम्पॉर्टेंट रोल है। लेकिन बदकिस्मती से अभी तक भी मुल्क भर में काफ़ी मसाइल हैं इस कम्युनिटी को दरपेश। और जैसा कि मैंने अभी भी कहा कि GDP का जो मुल्क की दौलत है उसमें बड़ा हिस्सा जो है वो ट्रांसपोर्टर्स का है, वर्कर्स का है। लेकिन फिर भी जहाँ तक इनके लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, उनके बाल बच्चों के की देखभाल करने के लिए जो मदद चाहिए, जो सहूलियात चाहिए, वो इनको नसीब नहीं है। बहरहाल आज ये आगाज़ हुआ, यहाँ मुख्तलिफ एसोसिएशंस हैं, उन्होंने कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी और हमें भी यहाँ दावत दी। मेरा भी ताल्लुक़ है ट्रेड यूनियन के साथ, CITU के साथ, और हमारे लक्ष्मण जी आए हैं बाहर से समर्थन के लिए यहाँ। तो ये मकसद यही है कि हमारे जो ड्राइवर्स हैं यहाँ, अभी एयरपोर्ट आप जाइए वहाँ पार्किंग के लिए जगह नहीं। और जहाँ तक सोशल सिक्योरिटी का ताल्लुक़ है, महाराष्ट्र में
तमिलनाडु में, शायद केरला में भी सोशल सिक्योरिटी के लिए काफ़ी रुकावट हैं, लेकिन यहाँ हमारे जम्मू कश्मीर में काफ़ी कमी है और ये आज तक जो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ रही। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए राजपुरा गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने कठुआ में होने वाली हलाकतों और ज़िले में बनी हुई सूरत हाल पर अपनी गहरी तशवीश का इजहार किया। गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने मरकज़ी वज़ारत दाखिला पर जोर दिया कि वो इस मामले की शफाफ तहक़ीक़ात कराए और जो भी काती हैं उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। ये जो वाक़ा है इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। 3 आदमियों को पहले अगवा किया जाता है, फिर उनको कत्ल किया जाता है। बहुत ही अफसोसनाक वाक़ा है, क्योंकि इस वक्त में सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्योंकि होम मिनिस्टर को, जो हमारे अमित शाह जी होम मिनिस्टर है, ये जो होम डिपार्टमेंट जो भी है यहाँ लॉ एंड ऑर्डर ये सब उसी के तहत आता है। हमारे जो हुकूमत है नेशनल काउंसिल उसके तहत पुलिस आता ही नहीं है। मैं उससे कहना चाहता हूँ, उससे गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये इसकी तरफ ध्यान दे। ये कत्ल गैरत, चूँकि पहले जो अगर ये कहते हैं कि दफ़ा 377 की वजह से ये चल रहा है, कश्मीर में चल रहा है कत्ल गैरत, या इसी वजह से हो रहा है, आज कैसे ये हो रहा है? आज चूँकि 377 अब उन्होंने उठाया है, उन्होंने हटाया है, कि फिर भी ये कत्ल गैरत कैसे इस वक्त चालू है, इस वक्त कैसे जारी है? और ये बारात से आते आते उनको अगवा किया जाता है, फिर कत्ल किया जाता है। इसके लिए मैं उससे गुजारिश करता हूँ, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूँ कि ये जो होम डिपार्टमेंट उनके पास है या पुलिस जो उनके पास है, जो एजेंसीज उनके पास है, उनको ज़रा हरकत में लाए और देखें ये कैसे हो रहा है, उनको ये मसला कैसे हो गया, उनको अगवा किसने किया, उनको फिर कत्ल किसने किया है, इसकी तरफ ध्यान दे। और जो यहाँ जो जम्मू डिवीज़न में 370 हटने के बाद अब जम्मू डिवीज़न में साबिक़ वज़ीर जम्मू कश्मीर व बीजेपी लीडर चौधरी जुल्फ़िकार अली ने उमर अब्दुल्ला सरकार के पेश करदा बजट को अवाम के साथ धोखा करार दिया। चौधरी जुल्फ़िकार अली ने बजट को मायूस कुन करार देते हुए कहा है कि बजट में नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत ने अवाम से किए गए एक वादे की भी तकमील नहीं की। पहली बात तो ये है कि 7 साल के बाद पहली बार, इससे पहले 7 बजट जो हुए हैं वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट ने नहीं पेश किए, जो कि उस वक़्त की जो इंतज़ामिया थी वही बजट मुरतब करती थी। ये पहला बजट है जो एक अवामी सरकार ने, अवाम की चुनी हुई सरकार ने पेश किया है, और इस बजट के साथ अवाम की बहुत सारी तवक्कुआत थी। और जब भी किसी सरकार का बजट जो पहले साल पेश किया जाता है, वो आने वाले 5 सालों के लिए एक फाउंडेशन होता है उनकी पॉलिसीज़ को लेके, उनके प्रोग्राम को लेके। उन्होंने आगे रियासत की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, लोगों की जो पब्लिक वेलफेयर है, उसके किस तरीके से चलाना है, वो एक डायरेक्शन होती है इस बजट में। लेकिन आपको याद होगा कि उमर साहब से जब भी ये सवाल पूछा गया, पत्रकारों ने, अखबार वालों ने, जब भी किसी ने सवाल पूछा कि आपने चुनाव में बड़े बड़े वादे किए, आपने लोगों से वादा किया कि हम आपको गैस सिलेंडर जो हैं 12 गैस सिलेंडर साल के मुफ्त देंगे। शिवसेना उद्धव ठाकरे जम्मू कश्मीर यूनिट के सरबराह मनीष सहानी ने कठुआ में 3 अफराद की हलाकतों पर अपने गहरे गम व अफसोस का इजहार किया और पसमानदगान से अपनी मुकम्मल हमदर्दी का इजहार किया है। इन्होंने इस वाक़े पर अपना शदीद रद्दमल देते हुए LG जम्मू कश्मीर से मुतालबा किया कि वो आम लोगों की जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाएं। तो मैं दुख प्रकट करूंगा जो कल हुआ, जो 3 लोगों की जो है मृत शरीर उनका मिला, जो एक दिन पूरा भी जो है शादी के किसी फंक्शन के अंदर शामिल होने के लिए गए थे और वहां से लापता हो गए। देखिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले तो मैं उनके परिवार के प्रति पूरी अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। उसके बाद सरकार से पूछना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल जी से पूछना चाहता हूं कि सुरक्षा व्यवस्था कहां है। ये कोई पहली घटना नहीं है। देखिए लगातार जम्मू संभाग के अंदर ये घटनाएं हो रही हैं। पहले हम कश्मीर
कश्मीर के अंदर सुनते थे कि आतंकवाद है, ये तो एक अलग तरह का आतंकवाद है। एक हमने नार्को टेरर सुना था, अब तो मुझे लगता है ये नार्को टेरर से भी ऊपर आकर कहीं जंगलों के अंदर, दूर दराज इलाकों के अंदर छुपकर जो है गोरिल्ला वार की तरह जो है आतंकवादी हमले किए जा रहे हैं। हमारे जवानों पर, आम नागरिक पर, जो मासूम और निहत्थे नागरिक है उन पर हमले किए जा रहे हैं। आप याद कीजिए, करीब 3 हफ्ते पूर्व की बात है, 16 फरवरी के अंदर इसी बिलावर इलाके के अंदर 2 मासूमों की जो है आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी। उससे आप और थोड़ा पीछे चले जाइए, रजौरी के अंदर 15 लोगों की मौत हो जाती है संदिग्ध परिस्थितियों के अंदर, किसी को जो है कुछ पता ही नहीं लगता। सरकार जो है तमाम तहकीकात कर रही है मगर अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई। उससे और पीछे चली जाइए, गृह मंत्रालय द्वारा चिन्हित किए गए थे, सरकार ने पुलिस की जानिब से जम्मू कश्मीर में मनशियात की तस्करी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। सुपुर में आज तकरीबन 38,91,000 मालियत की अराजी को सीज कर दिया गया। Yımına hozla git. Yım çinin. Gatas per lagi kum. Tul bir ak hot kunşe. Moyle kus. Bon pampilayız. और अब मौसम की सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं। महकमा मौसमियात ने पेश क़यासी की है कि 16 मार्च तक जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में दरमियानी दर्जे की बारिश के आसार हैं। किसानों को मशवरा दिया गया है कि वो 10 मार्च ता 16 मार्च के दरमियान खेतों और बागात में तखुमकारी अद्वियात का छिड़काव ना करें। महकमा मौसमियात के आला अहदेदार ने मौसम की सूरत हाल से मज़ीद तफसीलात बतलाई हैं। जारी की है, उस हिसाब से कल 10 तारीख से आने वाले 1 हफ्ते के दौरान जम्मू कश्मीर के अक्सर इलाकों में, मैदानी इलाकों में हल्की बारिशें होंगी, जबकि पहाड़ी इलाकों में हल्की से दरमियानी दर्जे की बर्फबारी भी हो सकती है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है, बीच बीच में हमें वक्फा भी मिलेगा, लेकिन ये वेदर सिस्टम जो है इंटेंस नहीं है। अलबत्ता ये लॉन्ग पीरियड के लिए है, लगभग ये वेदर सिस्टम 1 हफ्ते रहेगा, जिसकी वजह से हमें ये टेम्परेचर में बहुत गिरावट आ सकती है। और जो रात का टेम्परेचर है, क्योंकि इसकी वजह से जो क्लाउडी रहेगा, रात का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, लेकिन दिन के दर्जा हरारत में बहुत कमी आएगी। और ये बारिश का सिलसिला अगले हफ्ते लगभग 16 तारीख तक जारी रहेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि जब ये बारिश होगी आने वाले दिनों में, तो इससे जो हमारा नॉर्मल जो रेनफॉल होता है उसमें और मतलब ये नॉर्मल की तरफ चलेगा, तो और कमी नीचे आएगी। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये बारिश जो है इससे आने वाला सीजन जो है स्प्रिंग का वो बड़ा ठीक रहेगा। जी बिल्कुल, जब भी बर्फ होती है तो हाई रीजेस में जैसे 1 या 2 फुट बर्फ होगी, तो उसके बाद बर्फबारी के बाद वहाँ एवलांचेस का खतरा रहता है। जो लोग आसपास वहाँ पहाड़ी इलाकों में रहते हैं उनको चलने फिरने में बड़ा एहतियात बरतना चाहिए, क्योंकि एवलांचेस का खतरा रहता है। स्लिपरी रोड कंडीशंस भी रहेंगी, ट्रांसपोर्ट जो होते हैं उनको भी चलने फिरने में बड़ा एहतियात बरतना, उनको भी ट्रैफिक पुलिस के हिसाब से मतलब जो एडवाइजरी होगी एज पर वेदर कंडीशन उस हिसाब से चलना चाहिए। और जो इसका वल्नरेबल एरिया है, खासकर बानेहाल और रामबन के बीच में, वहाँ लैंडस्लाइड शूटिंग सिटोज भी आ सकते हैं, उनको भी आने से अपना सफ़र करने से पहले अपनी ट्रैफिक एडवाइजरी पर अमल करना चाहिए। नहीं, प्लेन्स में ज़्यादा बारिश होने का चांसेस है, तो कहीं कहीं जो थोड़ी सी मिडल रीचेस है वहाँ पर हल्की बर्फबारी हो सकती है। ज़्यादा मैदानी इलाकों में बारिश के ही चांसेस हैं। अलबत्ता इसमें ये मैंने बताया आपको कंटिन्यूस नहीं रहेगा, बीच बीच में रुकेगा ही, और ये वक्फे वक्फे से बारिश होगी जो लगभग 1 हफ्ते तक जाएगी।
आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। जम्मू कश्मीर के लिए 1,63,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के लिए तजावीज़ सामने आई। साल 2024 में 1,984 यूनिट्स कायम की गईं। सर्वे रिपोर्ट में हुकूमत ने पेश की तफसीलात। बजट समाजी इंसाफ की फराहमी का एक तसलसल है। NC-MLA हसनैन मसूदी का बयान। सांबा के रामगढ़ में कांग्रेस का जलसे आम, हमारी रियासत हमारा हक के तहत चलाई मुहिम। राजबाग श्रीनगर में ऑल रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन का मुनक्किद हुआ एक रोज़ा कन्वेंशन। यूसुफ सारेगामी ने की शिरकत। वर्कर्स के मुतालबात की यकसुई का हुकूमत से क्या मुतालबा। और कठुआ में 3 अफराद की मुश्तबा हलाकत के बाद पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसियां चौकस। LG ने तहकीकात के लिए जारी की हिदायत। कठुआ की सूरत हाल पर महबूबा मुफ्ती ने जताई तशवीश। जामे तहकीकात का हुकूमत से क्या मुतालबा। और सुपुर में मंशियात की तस्करी में मुलविस अफराद की जायदाद कर दी गई गर्क, पुलिस ने की कार्रवाई। इसी के साथ 4TV कश्मीर इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।